अच्छा, क्या हमारा लास्ट टाइम टॉपिक चैप्टर कंप्लीट हो गया? हमने लास्ट टॉपिक क्या लिखा है? कैन एनीवन टेल मी व्हिच वाज द लास्ट टॉपिक? इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में एमनियोसेंटेसिस कंप्लीट है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, yes. So I have given you few questions also, I guess. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, we'll discuss the questions in the end. So I'm going to start with the revision. Can anyone tell me if any school has started with genetics? Yes. अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके 5th चैप्टर स्टार्ट हो चुका है स्कूल में? रेज योर हैंड, बी क्विक. ओके, युवराज. एनीवन एल्स? नो. सिर्फ फर्स्ट यूनिट हुई है सबके स्कूल में? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन विद द फर्स्ट यूनिट इन योर स्कूल? रेज योर हैंड. ओके, युवराज, जैस्मिन, उत्कर्ष. ओके, हमारा तो भी चैप्टर 1 चल रहा है. ओके, चैप्टर 1 चल रहा है. ठीक है बेटे, क्योंकि छुट्टियों में ना हमें जेनेटिक्स का एक चैप्टर फिनिश करना है. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद रिवीजन. So let us start with revision from this chapter only, and I'll be starting with the test also. Okay. So reproductive health, sorry, not reproductive health. I'm going to start with reproduction in flowering plants, second chapter. First chapter we'll also do for revision, but I'm going to start with second chapter. It's sexual reproduction in flowering plants. Okay. Yes. I'm telling you one time again that I am going to start with revision. Please do not miss your classes now because बच्चे सबके अब एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे सितंबर तक. We have to complete our genetics, so we have syllabus. So I want to complete our syllabus by October end, or maybe in the first week of November. So बच्चे I'm going to start with revision from chapter 2 and chapter 3. चैप्टर 4 इज इजी. रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हमने अभी रिसेंटली किया तो आपको समझ भी आ गया होगा. तो अभी जो चैप्टर है चैप्टर 2, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. मयंक, आपने लास्ट टाइम रिकॉर्डिंग देख ली थी? यस मयंक. Mayank, you were absent in the last class. Okay. तो sexual reproduction in flowering plants. फ्लावर की बात हो रही है तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. और फ्लावर्स की अगर हम सबसे पहले हमने इस टॉपिक में इसमें टॉपिक पढ़ा था विच इज फ्लावर. फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट. फ्लावर इज अ modified shoot. This is the definition of a flower, which has nodes and which bear nodes and floral leaves. Excuse me, ma'am. Yes, Mayank. Yes, Mayank. Good afternoon. Ma'am, in last class, what we have done, I was absent in the last class. Vachi, that is what I was asking you in the beginning. Ki you missed your last class. Have you seen the recordings? They are uploaded in the app. Go check. We have completed chapter 4th. So I'm starting. Right now I'm starting with chapter 2 revision. आपने ये किया हुआ chapter, it's for revision. I'm going to start with the test also. How many of you can come for offline test? Raise your hand. Ma'am, when? Ma'am, of which chapter and when? Second chapter next week. No Second problem, chapter. Okay. Ishmeet, Mayank, yes, others. I want everyone should come except those who are living not here nearby. Others can come easily. After Tuesday? Yes, ma'am. Okay, no worries. ठीक है, ऐसे करेंगे. तो maybe Saturday, next Saturday. Yes. How Yes, many of ma'am. you can come? Next Friday or Saturday? Okay. ठीक है, I'll decide and I'll let you know. ये chapter complete करते हैं. फिर उसके बाद इसका टेस्ट होगा, both objective and subjective.
तो बच्चों जब आप पढ़ रहे हो अभी क्लास में, तो आपके पास नोट्स जिसके पास नहीं है, आस्क मी इंडिविजुअली और यू कैन आस्क इन ग्रुप। जिसने बनाए हुए हैं वो शेयर कर देना पीडीएफ। फिर उसके बाद आपके पास, एंड आई विल शेयर एनसीईआरटी क्वेश्चंस पीडीएफ टुडे, ठीक है, इसी चैप्टर के। फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड। And can you please share last class notes? Okay, I'll ask someone. Bache, Ishmeet, Palak, any one of you just share notes, okay? Angelina, anyone, bache, of you who has made good notes? Chapter 4. Chapter 2 also. Chapter 2 also. क्योंकि युवराज ने नहीं लिखे, जैस्मिन ने नहीं लिखे, और एक और स्टूडेंट ने नहीं लिखे हुए, तो ये इनके लिए हो जाएंगे, okay? Flower is a modified shoot which bears nodes and modified floral leaves. Flowers have 4 different type of whorls. उनमें कौन से whorls होते हैं? Calyx. Calyx का दूसरा नाम होता है sepals. They have 4 whorls: calyx, sepals, corolla, petals, androecium, which is male part. This is male part. Male के लिए ये sign आता है. And gynoecium, which is female part, female reproductive part. So these are the 4 whorls which are present in a flower. So flower is a modified shoot. Simple सी definition आती है. What is a flower? Flower is a highly modified shoot which has nodes and floral leaves. और इसमें they are, yes Ishmeet, flower have 4 different whorls: calyx, corolla, androecium and gynoecium. अब अगर हम different parts of flower की बात करें, सिर्फ सुनना है आपने. notes already सबने बनाए हुए हैं. I'll ask someone to share notes. Jasmine, युवराज, बेटे आप लोग सिर्फ सुनोगे. जैस्मिन, युवराज, खुशी, जानवी. So what are the different parts of a flower? तो पार्ट्स में अगर हम बात करें, तो पार्ट्स में सबसे पहला आता है पेडिसल, which is known as stalk. जिससे आप फ्लावर को पकड़ते हो, that is called as stalk. तो पेडिसल या stalk of a flower. दूसरा पार्ट आता है थैलेमस. थैलेमस क्या होता है? swollen basal part, swollen base of a flower, जिसके ऊपर सारे फ्लोरल whorls पड़े हुए हैं. The swollen end of a flower, that is called as thalamus. फिर उसके बाद हमने जो 4 whorls लिखे थे, उसमें सबसे पहला whorl था calyx. Calyx क्या होते हैं? sepals. तो they are green colored. They are green colored sepals. फिर दूसरा कौन सा आता है? corolla. Corolla क्या होते हैं? petals. They are generally bright colored. They attract insects for pollination. They are light colored and they are called as petals. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? एंड्रोशियम. एंड्रोशियम अभी आपको नाम बताया मैंने. इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल पार्ट. एंड मेल में 2 पार्ट्स होते हैं, विच इज फिलामेंट एंड एंथर. नेक्स्ट इज गाइनोशियम. गाइनोशियम किसको बोलते हैं? फीमेल पार्ट. फीमेल पार्ट में, ये फीमेल का रिप्रेजेंटेशन है, सिंपल. दिस इज फॉर मेल. फीमेल पार्ट में क्या क्या आता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ovary. And ovary has ovules. Ovules, they fertilize and they form seeds. So ovary contain ovules. Ovules are future seed. I guess सबको समझ आ चुका है. तो इसमें से जो these are all different parts of a flower. इसमें से ये 2 जो whorls हैं, these are called as essential whorls. Essential whorls, WHORLS. Essential whorls are those whorls which are directly involved in reproduction. Whereas all this calyx and corolla
4 वर्ल्स थे, 4 में से 2 एसेंशियल हैं और 2 नॉन एसेंशियल हैं. तो they assist in reproduction, they help in reproduction, but they are not involved in reproduction. जो involve होंगे they are called as essential worlds, जो help करते हैं, assist करते हैं, they are called as non essential worlds. और इन्हीं के अंदर मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल्स भी बताई थी. there are few different examples. अगर आपको पता हो तो आपके जनरली जब आपके एग्जाम्स होते हैं तो हिबिस्कस ब्लूम करता है. वैसे तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, फ्लावर है, और ये ब्लूम करता है थ्रू आउट. आई शेयर पिक्चर, we have this in our garden also. तो hibiscus rosa sinensis, जिसको हम बोलते हैं चाइना रोज. कौन से कलर का होता है ये? Ma'am, pink. Yes, it can be pink, it can be yellow. We have yellow one, so I'll definitely share the picture. Okay, so it's a beautiful flower. So hibiscus rosa sinensis, generally it is red in color, pink in color. There are different types of colors, and these petals, they are used in making perfumes also. Latex produce होता है इसका. So it has different values, but hibiscus rosa sinensis या China rose, it's a flower. तो ये beautiful flower है. Next I'm coming to different parts. तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस. कहते हैं फर्टिलाइजेशन होने से पहले, इट कैन बी विद एस और इट कैन बी विद जी, जेड. तो प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस. What are the changes that occur before fertilization? इसमें सबसे पहले फॉर्म होंगे formation of parts, formation of different parts of a flower like stamen and pistil. Stamen and pistil. तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे stamen part को. Stamen represent करता है मेल पार्ट, और इसके अंदर 2 चीजें आती हैं. It consists of anther और फिलामेंट. ये हम पढ़ चुके हैं. जो फिलामेंट है, इट इज कनेक्टेड टू थैलेमस, जो इसका प्रॉक्सिमल पार्ट है. जिस फिलामेंट ऑन वन एंड इट इज कनेक्टेड टू थैलेमस, ये फिलामेंट, और दूसरे एंड पे क्या आता है? एंथर. डिस्टल एंड पे एंथर है, और जहां से ये कनेक्टेड होता है इसके साथ, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव. इट इज अ टिश्यू. ये कनेक्टिव टिश्यू है. तो फिर से अभी रिपीट कर रहे हो. दिस इज एंथर, दिस इज फिलामेंट. फिलामेंट इज ज्वाइंड टू एंथर वाया दिस टिश्यू विच इज नोन एज कनेक्टिव. तो आपको समझ आ गया होगा जब आपने फ्लावर का डाइसेक्शन, ये तो आप नॉर्मल छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो. स्टेमन पार्ट विच इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें फिलामेंट और एंथर है. जो एंजियोस्पर्म, जो नॉर्मली फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर जो आपको एंथर मिलेगा, दैट इज बाइलोब्ड. This is a neat question. Bilobe and diathecus. Diathecus का मतलब है 2 membranes या 2 theca. तो इसके 2 lobes, अभी मैंने बनाया अगर डायग्राम, तो 2 lobes हैं, और इनके बाहर membrane भी 2 होती हैं. theca means covering. ये आपने भूलना नहीं है. एंजियोस्पर्म का जो एंथर है, that is bilobed and diathecus. Bilobed क्यों बोलते हैं? Because it has 2 lobes. You can see it from the diagram. It has 2 lobes. तो bilobes हैं, और इसके 2 कवरिंग है, bilobe, diathecus. ओके. फिर इसके बाद एक स्पेशल चीज आती है. इनके बीच में एक स्पेशल टिश्यू है which is called as connective. I'll make the diagram, then it will be more clear to you. और इसके अंदर जो एक स्पेशल पार्ट है वो होता है, अगर हम इसका सेक्शन काटेंगे, you will find male part which is microsporangia. Microsporangia which produces microspores. तो microsporangia जो है, microspores produce करते हैं which mature to form pollen grain. तो stamen के बारे में ही आ गया आपको. Stamen has anther and filament. एंजियोस्पर्मिक स्टेमन is bilobed and diathecus. इसी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं पोलन ग्रेन्स विद इन माइक्रोस्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस माइक्रोस्पोर्स. माइक्रोस्पोर्स मैच्योर टू फॉर्म पोलन ग्रेन. I'll make the diagram, then it will be more clear to you. अगर हम देखते हैं, ध्यान से देखना खुशी, तो इसमें फिलामेंट और एंथर.
सब बहुत ध्यान से सुनोगे क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन, सबकी टर्न आएगी, सबसे सुनने मैंने क्वेश्चंस। फिलामेंट और एंथर, अगर हम इसका सेक्शन काटते हैं तो सेक्शन ऐसे आएगा। और मैंने अभी बताया इट हैज 2 लेयर्स, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम, 2 लेयर्स है। बाहर वाली को बोलते हैं एपिडर्मिस, तभी इसको बोला जाता है डाइथिकस, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम। और फिर इसके बाद और भी लेयर्स आती हैं इसके बीच में। एपिडर्मिस एंडोथीशियम के बाद इसमें 2 से 3 लेयर्स आती हैं जिनको बोलते हैं मिडल लेयर्स। दे आर कॉल्ड एज मिडल लेयर्स। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मिडल लेयर्स, फिर इसके बाद एक नरिशिंग लेयर होती है जिसको नाम देते हैं टेपिटम। यस, और विद इन टेपिटम इज प्रेजेंट माइक्रोस्पोरेंजियम। और ये कनेक्टेड होते हैं वाया टिश्यू विच इज नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। This is connective tissue. Connective tissue is present all over in between these 2 lobes. This tissue is connective tissue. और ऐसे स्पोरेंजिया 4 होते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। तो अगर आपने देखा एंजियोस्पर्म जो है, तो अगर आपने देखा इसके अंदर 4 स्पोरेंजिया, टेट्रास्पोरेंजिएट, 2 लोब्स, एक लोब ये पूरा, एक ये लोब है, दोनों कनेक्टेड है कनेक्टिव टिश्यू से। तो बाय लोब्ड tetrasporangiate anther. How many of you are clear with this concept? Please raise your hand. Palak, Rajot, Alina, Kushi, very good. Kushi, Utkarsh, Kritika, Angelina, Mehak, Ishmeet, Tanvi, Ansh, very good. Yes, Amani, Dolly, Anubhav, I'm waiting. Harsh, Mayank, Yuvraj, I'm waiting, bache. Mehak, Condal, raise your hand, bete, if it is clear, be quick. Okay, Harsh, Yuvraj. Okay. Yes, Mehak, Condal, Manpreet, Mayank. ओके इसके बाद अगर हम सेक्शन देखते हैं इसका, बिल्कुल इसका छोटा सा पार्ट अगर हम देखें, अगर मैंने सिर्फ इतना सा पार्ट लिया है इसका, ये पार्ट, तो इसको डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं। आउटरमोस्ट लेयर थी एपिडर्मिस, ये आप ड्रॉ करोगे सभी एनसीईआरटी में बने हुए। एनसीईआरटी से डायग्राम्स की प्रैक्टिस जरूर करोगे। फिर उसके बाद लेयर थी एंडोथीशियम, थोड़ी सी थिक लेयर होती है, दिस इज कॉल्ड एज एंडोथीशियम। फिर उसके बाद आती हैं मिडल लेयर्स दे आर मे बी 2 to 3, तो मिडल लेयर्स दे आर थिक। मिडल लेयर्स के बाद आती हैं टेपिटम इज नरिशिंग लेयर, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है टू दी ग्रोइंग पोलन ग्रेन्स, दिस इज टेपिटम। मिडल लेयर्स, tapetum, and then is माइक्रोस्पोरेंजिया या स्पोरोजेनस टिश्यू। इसमें अभी पहले ये इमेच्योर होंगे तो स्पोरोजेनस टिश्यू जो अल्टीमेटली कन्वर्ट होंगे पोलन ग्रेन में। These are called as sporogenous cells. If the question comes, draw the structure of anther,
तो ये जो एंथर जो मैंने बनाया है, दिस इज द यंग एंथर, दिस इज द टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन। दो सेक्शन होते हैं, एक ट्रांसवर्स जैसे आपने बना हुआ है, एक आता है लॉन्गिट्यूडनल जिसमें से इसको मिडल से कट करेंगे। आई एम रिपीटिंग, एक सेक्शन होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्स। जैसे एक पेंसिल है, पेंसिल को जब आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखोगे ऐसे दिखेगा, ऊपर ट्रांसफर सेक्शन देखोगे तो ये टॉप पे, पेन आपके हाथ में अगर, तो आप पेन को टॉप व्यू कर रहे हो तो उसका सर्कुलर सेक्शन आ रहा है विच इज ट्रांसवर्स, और लेंथ वाइज देख रहे हो तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो सेम ऐसे ही इसमें ये यंग एंथर का आपने ट्रांसफर सेक्शन देखा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जो बनाया मैंने, इट्स अ पोर्शन ऑफ एंथर, पोर्शन ऑफ दिस एंथर, दिस इज अगेन यंग एंथर। और अगर आपसे पूछा जाए टीएस ऑफ मेच्योर एंथर, तो मेच्योर एंथर में ये पोलन ग्रेन्स जो मेच्योर हुए हैं ये निकल जाएंगे। यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है, ये सारा कनेक्टिव टिश्यू, बीच में जितना भी था कनेक्टिव टिश्यू, और ये सारे अब पोलन ग्रेन्स हैं। बाकी सब लेयर्स खत्म हो चुकी हैं और ये यहाँ से रिलीज होते हैं। दिस इज योर मेच्योर एंथर, और मेच्योर एंथर में जहां से रिलीज हुए हैं उस पॉइंट को बोलते हैं स्टोमियम, स्टोमियम विच इज माउथ। स्टोमा वर्ड आएगा दैट रिलेट्स टू माउथ। और स्टोमा में ये जो सेल्स हैं ये साइड वाले रप्चर हो जाते हैं और रिलीज कर देंगे पोलन ग्रेन्स को। तो ये सारे आपके पास क्या हैं, पोलन ग्रेन्स। और बाकी की लेयर्स जो हैं वो वैसी की वैसी रहेंगी। एपिडर्मिस, दूसरी कौन सी थी, एंडोथीशियम। एपिडर्मिस बाहर की लेयर है, एंडोथीशियम नेक्स्ट लेयर है। और इसके बाद जो मिडिल लेयर्स है वो भी वैसी की वैसी रहेंगी। ये आ गया आपके पास मेच्योर एंथर। हुआ क्या, ये जो इस डायग्राम में ये जो साइड पार्ट था ये रप्चर हो गया ताकि पोलन ग्रेन्स रिलीज हो। पहले बन रहे थे, पूरा प्रोसेस हो रहा था, इसको फुली कवर्ड था। जब वो मेच्योर हो गए तो देन व्हेन दे आर रेडी टू रिलीज देन दिस डेhiscence occurs। डेhiscence मींस जिसमें से ये रिलीज होते हैं, तो डेhiscence occurs। Okay, clear everyone? Yes, ma'am. Okay. How many of you are clear with the male part? Please raise your hand, and you have to revise this from your NCERT. Even if there is one point you are not clear with, just let me know. Open your NCERT sidewise. Okay. So this was all about male part, male reproductive part. और आप एनसीईआरटी से जब पढ़ोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। डायग्राम्स बहुत सुंदर दिए हुए हैं आपकी एनसीईआरटी में। फिर जब ये पोलन ग्रेन निकला है, इस पोलन ग्रेन के साथ क्या होता है, इसको हम बोलते हैं, पहले जब वो रिलीज होता है इट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर। पहले जब वो अंदर, सॉरी उसमें है विद इन द एंथर, देन इट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी बोलते हैं इसको। इट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। हर्ष ध्यान से सुनना बेटे, मैंने ऑलमोस्ट सभी से एक एक क्वेश्चन पुट करना है, तो इफ यू हैव एनी डाउट हर्ष, एनी डाउट एनीवेयर, जस्ट लेट मी नो राइट अवे। फिर एमएमसी जो मदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो शो करता है मियोसिस,
मियोसिस में मियोसिस 1 में ये अपने आप को डिवाइड कर लेता है 2 में, लार्ज और स्मॉल सेल, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोराडाइड। और फिर ये मियोसिस 2 के बाद 4 फॉर्म करेगा, क्योंकि मियोसिस 1 के बाद 1 से 2 बनते हैं, मियोसिस 2 में 4 फॉर्म होते हैं, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड, 4 ये सेल्स आ जाएंगे, चारों के पास अपना अपना न्यूक्लियाई होगा। तो पहले माइक्रोस्पोराडाइड है, देन इट इज माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड स्टेज में ये पोलन ग्रेन बन चुका है एंड देन इट इज रिलीज्ड। तो आई एम रिपीटिंग, जब ये विद इन दिस पार्ट है, माइक्रोस्पोर स्टेज में है, आप देख सकते हो ये डायग्राम, जब ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये अपने अंदर मियोसिस, जिसको हम बोल रहे थे माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये अंडरगो करता है मियोसिस। मियोसिस 1 में ये 2 बनाएगा डायड, फिर उसके बाद 4 बना देगा टेट्राड इसी के अंदर। और जब ये मेच्योर होते हैं, ये कौन सी स्टेज में रिलीज होते हैं? टेट्राड स्टेज में 4 होते हैं, चारों अलग अलग हो गए, रिलीज हो गए। और अब इनके साथ क्या होगा, जब ये रिलीज हुए तो एक, चारों में से कोई भी एक, चारों में से, ये वैसे तो चारों अलग अलग बनेंगे, लेकिन इनमें से कोई भी एक में अब इसको इनलार्ज करके देख रहे हैं, तो ये, इसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर, या फिर हम इसको नाम देंगे पोलन ग्रेन। पहले ये एमएमसी था, माइक्रोस्पोर मदर सेल था, डायड बना, टेट्राड बना, टेट्राड में से कोई भी एक ऐसे ये शो करेगा। ऑलमोस्ट सारे यही काम करते हैं, तो अभी हम सिर्फ एक के बारे में पढ़ रहे हैं। ये इनलार्ज होगा अपने साइज में, बड़ा होगा साइज में, बिकॉज इसने आगे डिवाइड करना है। देन इट अंडरगोज अनइक्वल डिवीजन, जिसमें ये एक लार्ज सेल फॉर्म करता है और एक स्मॉल सेल। इसमें लार्ज वाला होता है वेजिटेटिव और स्मॉल वाला होता है जनरेटिव। And this is how your pollen grain is released. Am I clear with everyone? Pollen grain. Yes, very good. तो देखो अभी हुआ क्या, जो मैंने आपको बताया दोबारा से सुन लो, जिसको नहीं क्लियर हुआ। हर्ष, आई थिंक देयर वाज सम नेटवर्क इशू, आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू। हमने पढ़ा मेल पार्ट होता है फिलामेंट और एंथर। एंथर का सेक्शन ये आ गया, इसमें बाहर 2 लेयर्स थी, एपिडर्मिस एंडोथीशियम, बीच में 3 लेयर्स थी, मिडिल लेयर्स, फिर टेपटम। टेपटम नरिशिंग लेयर है। It is also called as nurse layer because it provides nourishment to the growing sporogenous tissue. ठीक है, ये पूरा प्रोवाइड करती है ग्रोथ के लिए। फिर उसके बाद जब हमने पढ़ा कि ये एंथर की लेयर्स डिटेल में देखी, एक पार्ट को देखा, फिर हमने देखा वो मेच्योर हो गए, और मेच्योर होने के बाद वो पोलन ग्रेन्स रिलीज कर रहे हैं, एंड दे आर रिलीज्ड फ्रॉम दिस पॉइंट व्हिच इज नोन एज स्टोमियम। अब जो ये निकले हैं, ये कैसे बने, हमने स्टेजेस पढ़ी। पहले ये होते हैं जो इमेच्योर स्टेज में, यंग में, स्पोरोजिनस टिश्यू which is known as microspore mother cell. Microspore mother cell undergoes meiosis to form 2 part. meiosis 1 में 2 बनेंगे, जिसको बोला जाता है डायड। फिर ये meiosis 2 में 4 बनेंगे, जिसको बोलेंगे टेट्राड। टेट्राड में कोई भी एक जो है मेच्योर होगा, वैसे सारे होंगे, तो हमने सिर्फ एक को पढ़ा है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये माइक्रोस्पोर जो है ग्रोज इन साइज. This nuclei divides unequally into large vegetative cell and small generative cell. ये आपके पास है pollen grain with large vegetative and small generative. और अभी हम देखेंगे इसके साथ क्या होगा, इसके अंदर और डेवलपमेंट्स होंगी। और ये क्या होगा इसके साथ डेवलपमेंट में, एक लेयर फॉर्म करेगा इंटाइन, बाहर की लेयर फॉर्म करेगा एक्साइन. This is called as exine and this is called as intine. और कई जगह से ये एक्साइन लेयर एब्सेंट होती है. दिस एक्साइन लेयर इज एब्सेंट फ्रॉम फ्यू पॉइंट्स. These points are called as germ pore. और इसी के अंदर बीच में, तन्वी मुझे बताओगे क्या क्या नाम है इनके? तन्वी, tell me the name of this cell and this one also. Yes, generative and Vegetative. yes, vegetative cell. The generative cell and large vegetative cell. So this is mature pollen grain.
Clear everyone? Yes, ma'am. Okay. Yes. Yes. फिर इसके बाद ये पोलन ग्रेन है, इसके बाहर जो ऑर्नामेंटेशन है दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन. इट इज अ प्रोटीन. स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा प्रोटीन है जो इसको प्रोटेक्ट करता है इवन ड्यूरिंग हार्श कंडीशन, और इतना स्ट्रॉन्ग है स्पोरोपोलेनिन दैट दे कैन बी फॉसिलाइज्ड आल्सो. कहते हैं फॉसिल पोलन ग्रेन भी हम बहुत सालों बाद भी हम पोलन ग्रेन्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं because they have this special layer which is sporopollenin. It can be fossilized. फॉसिल के रूप में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं. So this is the structure of complete pollen grain. Now I'm going to tell you a few points about this process which is microsporogenesis. ये जो process था, it is a process of, ये पूरे process को हम नाम देते हैं microsporogenesis. Whole process is called as microsporogenesis. Microsporogenesis is formation of microspores. Microsporogenesis is a process of formation of microspore. तो microspore में अगर आपको पता है microsporogenesis में each cell within the sporangia, a microspore mother cell undergoes meiosis. Each cell within this sporangia, microsporangia, undergoes meiosis to form microspore tetrad. तो microspore tetrad form होगा ultimately. तो this forms microspore tetrad. Okay, और they all will be haploid, और उसमें से tetrad में से tetrad था जो, उसमें से कोई भी एक पोलन ग्रेन, हमने डिटेल में पढ़ा था, अंश हम एक पोलन ग्रेन की बात कर रहे थे. पोलन ग्रेन हैज टू लेयर्स, outer is exine, inner is entine. Exine is absent from some region which is called as germ pore. समझ आ रहा है सभी को? Exine, entine, and they have additional layer which is known as, yes, Sporopollenin. yes, sporopollenin. स्पोरोपोलोनिन कहते हैं किसकी बनी हुई है? इट इज रिच इन प्रोटीन. इट इज अ प्रोटीनेशियस लेयर, और जब वो डिसाइज होता है मेच्योरिटी के बाद तो इट एक्ट एज अ कवरिंग. इट प्रोटेक्ट्स द पोलन ग्रेन फ्रॉम हार्श कंडीशन. इट हैज टू सेल्स, लार्ज वेजिटेटिव एंड स्मॉल जनरेटिव. एक बड़ा वेजिटेटिव सेल है और स्मॉल जनरेटिव सेल है. सो पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड एट टू सेल स्टेज. और एक टर्म अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को बताई थी पोलन ग्रेन के लिए, they may cause allergies also, and that is why they commonly known disease is pollen allergen. पोलन ग्रेन्स अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था जो बुड्ढी माई के बाल उड़ते हैं, या फिर पोलन्स जो है, पोलन शावर भी होती है. अगर आप जाओगे हिल एरियाज में, अप हिल्स जाते हो घूमने, तो आप कई ट्रीज में ऐसे देखोगे एकदम से येलो डस्ट, आप खड़े हुए हो ऐसे एकदम से शावर आता है, येलो छोटे छोटे डॉट्स गिरते हैं और गीले हो जाते हैं कपड़े, इवन कपड़ों पे स्टिक भी हो जाते हैं. दैट इज अ पोलन शावर, सल्फर शावर उसको बोलते हैं. और वैसे अगर आप देखते हो अभी ये सीजन है तो पोलन्स का, तो कईयों को पोलन ऑटम में जब हवा बहुत तेज चलती है बिफोर मॉनसून, तो आप देखते हो पोलन्स जो है इधर उधर उड़ते हैं. तो जो बाल से उड़ते हैं बुड्ढी माई के, वो जो दैट इज ऑल्सो पोलन ग्रेन. इट इज वेरी स्टिकी. तो पोलन ग्रेन जो है इट कॉजेज एलर्जीज. और इसमें कॉमन पोलन एलर्जेंस में एग्जांपल आती है पार्थेनियम, which is also called as pigweed और कैरेट ग्रास. कैरेट ग्रास बोलते हैं, पिगवीड बोलते हैं. अगर आपने देखा हो
ये आम रोड्स पे लगे होते हैं, काफी ग्रीन ग्रीन ऐसे बहुत झाड़ियां होती हैं और इस पे ऐसे छोटे छोटे से गोभी जैसे छोटे छोटे बिल्कुल व्हाइट कलर के ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं, देखे हैं सभी ने? इट इज Yes. ऑल्सो कॉल्ड एज कांग्रेस ग्रास एंड इट कॉजेज एलर्जी। अगर आपके हाथ पे टच कर जाए तो इट कॉजेज एलर्जी। तो वैसे अदरवाइज पोलन ग्रेन्स एज दे हैव दिस प्रोटीन रिच लेयर विच इज नोन एज पोरोपोलोनिन, तो दे आर यूज्ड एज सप्लीमेंट्स। प्रोटीन सप्लीमेंट खाते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स पता है ना, जो बॉडी बिल्डर्स हैं प्रोटीन शेक लेते हैं, दैट इज अ प्रोटीन सप्लीमेंट। The pollen grains, as they are rich in nutrients, they are rich in protein, so they are used as a source of supplement by athletes जो running करते हैं, या even Horses. yes horses, race horses जो हैं उनको भी दी जाती हैं, and they are used in the form of tablets, छोटे छोटे tablets बनाए जाते हैं, that is given in your NCERT। NCERT में वो tablets बनाई हुई है pollen grain की tablets। अब नेक्स्ट पार्ट आता है पोलन ग्रेन्स की सर्वाइवल। तो पोलन ग्रेन्स कैन सर्वाइव फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू फ्यू मंथ्स। तो पोलन ग्रेन एक कुछ मिनट से लेके कुछ मंथ्स तक, नॉट 1 month, इट इज फॉर फ्यू मंथ्स इट कैन सर्वाइव। तो ये सर्वाइवल रेट इसकी इतनी ज्यादा है। और अगर आप चाहते हो काफी सालों तक प्रिजर्व करना, काफी देर तक प्रिजर्व करना, then pollen grains can be stored in, yes anyone? Liquid nitrogen at हाँ नाइट्रोजन। -190 हाँ Celsius. यस, -190 डिग्री 196 डिग्री सेल्सियस। किसी भी चीज को जिंदा रखना है, स्टोर करना है अपने काफी सालों के लिए या काफी देर के लिए, देन यू कैन स्टोर इट इन liquid nitrogen at temperature -196 degree Celsius. Okay, now coming to next part, पोलन ग्रेन्स के बारे में सबको क्लियर हो चुका है, ये एनसीईआरटी से आपने डायग्राम्स भी रिवाइज करने हैं। फिर उसके बाद हम पार्ट आते हैं फीमेल पार्ट विच इज गाइनोशियम। गाइनोशियम का दूसरा नाम होता है पिस्टल। इट रिप्रेजेंट फीमेल वर्ल, फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल। तो पिस्टल कंसिस्ट ऑफ ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, या स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। Gynoecium can have one carpel, इस पूरे को हम कार्पल भी बोलते हैं, पिस्टल भी बोलेंगे या कार्पल भी बोलेंगे। If it has only one pistil or one carpel, it is called as monocarpellary. If it has many carpels, it is called as Multicarpellary. multicarpellary. Okay, तो it can be one gynoecium, female part जनरली हम बनाते हैं तो it is monocarpellary, ये female part है, stigma, style and ovary. But sometimes they may have more than one carpel, it is called as multiple carpellary or multicarpellary. It is given in your NCERT. It can be one or it can be many. फिर इसके बाद अगर many है तो many में या तो अभी मैंने बनाया है एक ही पे fused हो सकते हैं, which is known as syncarpus. syncarpus का मतलब होगा fused, बहुत सारी ovaries हैं लेकिन जुड़ी हुई हैं, और it may be apocarpus. Apocarpus means they are free, they are not fused. जैसे अभी मैंने डायग्राम जब ड्रॉ किया था, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, बहुत सारी ओवरीज अगर एक ही में जुड़ी हुई, सिनकार्पस बहुत सारी ओवरीज हैं बट दे आर इंडिविजुअल, they are not fused, then it is apocarpus. So it can be syncarpus or it can be apocarpus if they are multicarpellary. Okay, और अगर हम बात करेंगे स्टाइल की, ये तो आ गई बात कार्पल की। फिर उसके बाद स्टिग्मा, सॉरी पहले हम बात करेंगे स्टिग्मा की क्योंकि इसके 3 हिस्से हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो अगर हम बात करेंगे स्टिग्मा
स्टिग्मा अगर आप लोगों को पता है तो इट शुड बी स्टिकी, इट शुड बी एक्सपोज्ड। स्टिकी होगा तभी ये स्टिक करेगा पोलन ग्रेन को, एक्सपोज्ड होगा, बाहर होगा, इजी होगा इसको कैच करना पोलन ग्रेन। फिर हम बात करते हैं स्टाइल की। स्टिग्मा तो आपको बता दिया स्टिकी होना चाहिए। स्टाइल जो है अंदर से हॉलो भी हो सकती है, खाली खोखली भी हो सकती है। इट कैन बी सॉलिड ऑल्सो, सॉलिड मतलब सेल से भरी हुई। तो स्टाइल जनरली इट इज हॉलो बिकॉज इट हेल्प्स इन एक्सपोजिंग, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स इन एक्सपोजिंग स्टिग्मा अवे फ्रॉम ओवरी। तो इट इज जनरली सिलेंडर स्टॉक, स्टॉक मतलब एक ब्रांच, एक स्टेम। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है ओवरी। ओवरी जो है लास्ट पार्ट होता है ओवरी, विच कंटेन्स मेनी चैम्बर्स कॉल्ड एज लॉक्यूल्स। तो ओवरी अगर हम बात करें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी में हैव मेनी चैम्बर्स विद लॉक्यूल्स, और ये साथ में इसके विद इन दिस लॉक्यूल आर प्रेजेंट ओव्यूल्स। These are called as eggs. So, or locules contains ovules. तो ओवरी के अंदर बहुत सारे लॉक्यूल्स हैं और लॉक्यूल्स के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल्स दे रिप्रेजेंट एग and arrangement of ovules within ovary is called as placentation. दोबारा सुनो, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर जो ये ऐसे लॉक्यूल्स होते हैं, लॉक्यूल्स के बीच में होते हैं एग्स। ये एग्स जो हैं दे रिप्रेजेंट फ्यूचर सीड। इनकी अरेंजमेंट को बोलते हैं द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन ओवरी इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन ओवरी इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन आप +1 में पढ़ चुके हो, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन, बताओ विद इन ovary, यस विद इन ओवरी। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स पड़े हैं उनके अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन। इट कैन बी सिंगल ओव्यूल, कहते हैं एक ही बीज हो सकता है। अगर सिंगल ओव्यूल है, जैसे आप खाते हो आजकल फेवरेट चल रहा है सभी का मैंजिफेरा इंडिका, दैट इज मैंगो, उसमें एक ही गुठली होती है। इवन इन सनफ्लावर, किसी ने सुना हो सनफ्लावर ऑयल इज वेरी गुड फॉर हार्ट। इवन पैडी, अगर आपको चावल का दाना पता हो तो चावल का दाना जो हस्क में होता है, ब्राउन कलर हस्क में होता है, ब्राउन कलर कवरिंग में होता है, तो अगेन इट हैज सिंगल सीड विद मेनी ओव्यूल्स। एक ही में बहुत सारे दाने हो तो आप देखते हो मटर में पी, एक ही छिलके में बहुत सारे दाने होते हैं। सबका फेवरेट है वाटरमेलन, तरबूज, इवन वाटर लिली, बहुत सारे बीज होंगे एक ही में। फिर उसकी इज एवरीथिंग क्लियर ऑन दिस पेज? yes ma'am, ओके, अब थोड़ा सा टफ पार्ट आज हम कंप्लीट करेंगे। रिवीजन है तो कईयों को आता है, कईयों को नहीं आता। तो कोई भी एक सेल विद इन दी ओवरी, अब ध्यान से सुनना, हम डायग्राम से समझेंगे, डायग्राम से समझना बहुत इजी होता है। दिस इज स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ओवरी के अंदर टिश्यू होता है जिसको हम बोलेंगे, यस एनीवन, nucellus, न्यूसेलस। दिस इज द प्लेसेंटा, it is also called as placenta, it is also called as nucellus,
न्यूसेलस के अंदर आता है ओव्यूल, ऐसे प्रेजेंट होता है ये। तो न्यूसेलस में अगर ये कुछ भी नहीं देखा आपने, कुछ भी नहीं है अगर इसके अंदर, तो एनी सेल विद इन दिस न्यूसेलस, कोई भी सेल कहीं से भी, यहाँ का सेल, यहाँ का सेल, यहाँ का सेल, कोई भी सेल, any cell within this nucellus becomes active and start behaving like an archaesporal cell. तो कोई भी एक सेल जो है अपने आप को आर्कीस्पोरियल सेल होता है रिप्रोडक्टिव सेल। तो एक सेल जो है अपने आप को डिवाइड करेगा 2 में, फिर वो फॉर्म करता है 2 से 4, I'm repeating, any cell within nucellus becomes active and start dividing. It will divide into 2 and then into 4, 2 से 4, और इनमें से जो ऊपर वाले 3 हैं ये मर जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, सिर्फ ये एक फंक्शनल रहेगा। तो ये 3 जो हैं डीजनरेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जो नीचे वाला था वो एक्टिव हो जाएगा। इट अंडरगोज डिवीजन, 1 से 2 बनाएगा सेल, 2 से फिर से 4 बनाएगा ये, 4 से फिर ये बना देगा 8, and then this 8 will arrange themselves into upper 3 cells, 3 ऊपर आ जाएंगे, 3 नीचे आ जाएंगे, बीच में 2 आ जाएंगे, 8 हो गए, 3, 3, 6, 2, 8। आई एम रिपीटिंग, जिसको नहीं समझ आया अपनी स्क्रीन पे देखो, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी थी, ओवरी के अंदर इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। कोई भी एक सेल विद इन न्यूसेलस, इसको न्यूसेलस लिखा हुआ एनसीईआरटी में, कोई भी सेल कहीं से भी एक्टिव हो जाएगा और बिहेव करेगा एज प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल which divides into 2 and then into 4. These are called as megaspore. वो माइक्रोस्पोर थे पोलन ग्रेन, ये मेगास्पोर है, क्योंकि ये बड़े होते हैं इसलिए इसको बोलते हैं मेगा, मेल वाला छोटा होता है इसलिए उसको बोलते हैं माइक्रो। मेगास्पोर में ये 3 डीजनरेट हो जाएंगे, मर गए, तो उनमें से एक जो है फंक्शनल होगा, वो डिवाइड होगा 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8 में, और 8 सेल्स अपने आप को अरेंज करेंगे ऐसे, अपर 3, लोअर 3, मिडिल 2। How many of you are clear with this diagram? Please raise your hand and be quick. Any doubt till here? Let me know. Yes, Amanmeet, Anubhav, Dolly, Harsh, Dolly, Anubhav. Okay, Anubhav. Dolly, bache, I'm waiting for your answer. You're not responding today. What happened, Dolly? Amanmeet, Harsh. Okay, very good. Manpreet Kaur, Mehek Kondal, Tanvi. Tanvi, kahan ho? Say hi. Tanvi, unmute yourself and say hi. You're not active today. What happened, Tanvi? Yes, Amanmeet, not clear. Mayank, clear है बेटे? Manpreet? Okay. Okay, got it. ठीक है. Tanvi, कहाँ हो आज? I can see your hand, but raise hand, but you're not speaking at all. Okay, so okay, only Mehek Kondal left. Yes, Mehek Kondal, raise your hand, bete, if it is clear. Okay. Next part is, अब ये हम देखते हैं ये अरेंज कैसे होंगे, ये वाले पार्ट। तो नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट शीट में कि अरेंज कैसे होंगे। अरेंज होंगे ये अपर 3, लोअर 3 एंड मिडिल 2। 8 थे ना, और मिडिल 2 फ्यूज्ड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, इसलिए वो एक ही बनाते हैं सेल। होने चाहिए थे 2, बट वो फ्यूज हो गए तो एक ही रह गए। तो नीचे वाले तीनों को बोलते हैं, इनमें से एग ऑपरेटर्स, जिनमें से 2 हैं सिनर्जिड्स
ये दोनों होते हैं सिनर्जिड्स और ये वाला होता है एग, एग सेल। असली में तो यही चाहिए था, एग सेल, और इस पूरे को बोलते हैं एग अपरेटस। बीच वाले क्या है? पोलर न्यूक्लियर। अपर वाले तीनों क्या है? एंटीपोडल्स, एंटीपोडल सेल्स। और आसपास क्या होता है? साइटोप्लाज्म। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल सेल। और जो आप लोगों को याद करनी है इनकी पोजीशन, who will tell me which side is this? Ma'am, micropyle. Yes, this is micropyle. हरजोत, इसके ऑपोजिट कौन सी साइड होगी? Calazal. चलाजल, वेरी गुड, चलाजल एंड। तो दो एंड्स होंगे, एक चलाजल और एक माइक्रोपाइल। कुछ नहीं, ये बॉल थी, ये एक बॉल है, बॉल के अपर वाले पार्ट को बोल दिया चलाजल एंड, लोअर वाले को बोल दिया माइक्रोपाइल। नाम दिया हुआ बस। चलाजल एंड पे बनेंगे एंटीपोडल सेल्स और माइक्रोपाइल एंड पे बनेंगे एग अपरेटस, दैट्स इट। ओके, सो ये पूरा स्ट्रक्चर है एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, यस उत्कर्ष, what is the Polygonum. name? Yes, the type is polygonum, but embryo sac, embryo sac। नीट का क्वेश्चन है, ये टाइप थी पॉलीगोनम टाइप। पॉलीगोनम एक टाइप है कि उसमें ऐसे बनता है, तो उसको नाम दे दिया पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। ओके, क्लियर एवरीवन? तो हमने ये पढ़ा इसमें कि फीमेल पार्ट में, ओवरी में, प्लेसेंटा में, यूनिसेलस में, कोई भी एक सेल न्यूसेलस में starts behaving like archisporial cell. Archisporial undergoes meiosis to form meiosis 1 and meiosis 2, जिसमें ये डिप्लॉयड था, हेप्लॉयड हो गया, 3 रीजनरेट हो जाते हैं, एक रह जाता है। इट अंडरगोज माइटोसिस टू फॉर्म 2, 2 से 4, 4 से 8, देन दे अरेंज इट themselves into एम्ब्रियो सैक। तो इसके बीच में आपको मिलेगी एम्ब्रियो सैक with upper 3 cells, lower 3 cells and middle 2 cells, that's it। और इसके बाहर जो है, इसके बाहर का पार्ट आएगा, उसको हम बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल इज प्रेजेंट, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी इज प्रेजेंट विद इन दिस रीजन। ये क्वेश्चन मार्क से होता है रीजन ऐसे, और इसके बीच में आपको मिलेगा एम्ब्रियो सैक। जो ये क्वेश्चन मार्क रीजन है, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। जो क्वेश्चन मार्क रीजन है, इसको बोलेंगे हम ओव्यूल। समझ रहे हो ये कौन सा पार्ट है? ये क्वेश्चन मार्क है। और ओव्यूल के अंदर मिलता है आपको यहाँ पे एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में थे वो 3 सेल्स ऊपर, 3 सेल्स नीचे, बीच में 2 सेल्स। अब आपने ये इसका डायग्राम भी सुनना है। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज, यस, फ्यूनिकल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टॉक। जो बाहर पार्ट आ रहा है उसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टॉक। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड एज हाइलम, इसको बोलेंगे हाइलम, इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को। और इसमें एक लाइन जाती है बीच में, इनके दोनों के बीच में, जो वैस्कुलर टिश्यू है जो प्रोवाइड करती है नरिशमेंट, इसको नाम देते हैं रैफे। बाहर की 2 लेयर्स हैं इंटेगमेंट्स, आउटर और इनर इंटेगमेंट। और अब आपको समझ आएगा क्यों हमने नाम दिया था, इस एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइल और इसके अपोजिट एंड को बोलते हैं चलाजल।
तो ये डायग्राम समझो, ये क्वेश्चन मार्क है, इसके बीच में बना हुआ है, इसको हमने स्ट्रक्चर को, ये अंदर वाला पार्ट तो मैंने सारा समझा दिया। कोई भी एक सेल है, डिवाइड होगा 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8 में, और अंदर तो ये बन चुका है, लेकिन बाहर जिसके अंदर बना है वो ये है, ओव्यूल बोलते हैं इसको। ये ओव्यूल जो है क्वेश्चन मार्क सा बना हुआ है। माइक्रोपाइल, चलाजल, इस पूरी स्टॉक को बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं जिससे हम ये बाहर आ रही है, इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। और जहां पे ये अटैच होती है इसके साथ, इस पॉइंट के साथ, इसको बोलते हैं हाइलम। इनके बीच में जा रही है एक लेयर विच इज कॉल्ड एज रैफिक। तो ये स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आपकी एनसीईआरटी में ये दो तरह से होता है, एक एनाट्रोपस और एक ऑर्थोट्रोपस। यस, इन योर एनसीईआरटी इट इज ऑर्थो और एना। Who will tell me? Yes, it is anatropous, which is inverted. आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है। Can anyone tell me page number? 25. मैम 25. Okay, 25. पेज 25 पे एनाट्रोपस ओव्यूल बना हुआ है। क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन मार्क जो है ना उल्टा हो गया। एनाट्रोपस ओव्यूल, जिसमें ये वाला एंड होगा माइक्रोपाइल, ये वाला एंड होगा चलाजलिन। माइक्रोपाइल एंड दिस इज चलाजलिन। इसी क्वेश्चन मार्क को सीधा किया तो ये बन गया। टाइप सही, ये जो मैंने बनाई है दिस इज ऑर्थोट्रोपस, नाम है ये। जो आपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये ऑर्थोट्रोपस टाइप है। इसी क्वेश्चन मार्क को सब कुछ सेम रहेगा, क्वेश्चन मार्क उल्टा कर दो, 180 डिग्रीज उल्टा कर दो, इन्वर्ट कर दो, तो ये टाइप आ गई एनाट्रोपस ओव्यूल। आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ है एनाट्रोपस। क्वेश्चन में आता है, डायग्राम पूछा जाता है, ड्रॉ डायग्राम ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। आप कहते हो हमने तो ओव्यूल सीखा है, ये कहां से आ गया? ये दिया हुआ एनसीईआरटी में नाम इसको। और अगर इसी को पूछ लिया ऑर्थोट्रोपस विच इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, देन यू हैव टू मेक दिस, उसी क्वेश्चन मार्क को सीधा कर दो। और जो ये हमने प्रोसेस पढ़ा पूरा, दिस इज कॉल्ड एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस, दैट मीन्स प्रोसेस ऑफ, ये जो मैंने आपको बनाया, इट इज अ प्रोसेस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, जहां पे भी आ गया जेनेसिस उसका मतलब होगा फॉर्मेशन। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, दिस इज MMC। वो माइक्रोस्पोर था, ये मेगास्पोर था। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। और मेगास्पोर मदर सेल आप लोग पढ़ चुके हो, एनी सेल विद इन द न्यूसेलस undergoes meiosis to form 4 megaspores. Out of these 4, या तो ये 3 डिजनरेट करेंगे या फिर तीनों एक्टिव रहेंगे, इट कैन बी एनी। आउट ऑफ 4 either few degenerate or all take part in embryo formation, embryo sac formation. और सिर्फ जो मैंने अभी बनाया है, सिर्फ एक रहा जिंदा, बाकी मर गए, तो इसलिए हम इसको नाम देंगे मोनोस्पोरिक। It can be all the four spores are participating, it can be tetrasporic. तो it can be monosporic, it can be tetrasporic. क्या महक क्लियर हुई है बात? यस यस महक, कॉन्डल महक क्लियर है बेटे? यस मैम. ओके, तो इट कैन बी मोनोस्पोरिक, इट कैन बी टेट्रास्पोरिक, चारों के चारों एक्टिव हो सकते हैं। अगर सिर्फ एक एक्टिव है मोनोस्पोरिक, जो आपकी स्क्रीन पे बना हुआ है, बाकी 3 डिजेनरेट हो गए, ओनली 1 इज एक्टिव, which undergoes mitosis to produce this embryo sac. और embryo sac में अगर आप ध्यान दे रहे हो तो embryo sac में हमने डिटेल में पढ़ा, embryo sac has 2 synergids, 1 egg cell. 2 synergids they make up egg apparatus along with the egg cell. और अगर ये egg है तो it is rich in cytoplasm, it is rich in ribosomes. Central cell has 2 nuclei and it is the largest cell and it will convert into endosperm. बाद में ये बनाएगा endosperm. और इसके बाद जो आते हैं antipodals, they are present at chalazal end
और एंटीपोडल सेल्स जो हैं दे कैन वेरी इन नंबर्स. तो अभी तो सिर्फ आपने 3 वाला पढ़ा है. इट कैन मे वेरी अप टू 300 सेल्स. फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है पॉलिनेशन. विल कंप्लीट इट इन द नेक्स्ट क्लास. एनी डाउट टिल हियर लेट मी नो. यस, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? Yes, Selena, Amanmeet, Angelina, Ansh, Anubhav, Dolly. Any question till now? No, ma'am. एक्सक्यूज मैम. Yes. मैम आपने इसमें फर्टिलाइजेशन करवाई थी कि 3 एंजियोस्पर्म 60% एंजियोस्पर्म 2 सेल स्टेज पे रिलीज होते हैं और 40% 3 सेल स्टेज पे. Hmm. 3 सेल में तो 2 मेल गैमीट बनते हैं, तो वो एक फ्यूज करके जाइगोट बना देते हैं एंड एक Polar nuclei के साथ. हाँ. बना देते हैं. मैम 2 सेल स्टेज में फिर वो कैसे होएगा? नहीं, वो जब वो पोलन ट्यूब फॉर्म करता है ना विद इन फीमेल, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. जब वो पोलन ट्यूब के अंदर होता है देन इट गेट्स ट्रिगर्ड अप और वो 2 में डिवाइड हो जाता है. तो पोलन ट्यूब में वो 3 सेल स्टेज आ जाती है. ओके. ओके, सो आज जो हमने पढ़ा है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास तक ये पढ़ के आने डायग्राम्स. यू हैव टू मेक ऑल द डायग्राम्स. ओके, क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस. तो आप लोग सभी ये डायग्राम्स सभी रिवाइज करोगे और रिवीजन जो है तभी अच्छी होगी जब आप लोगों के पास डायग्राम्स क्लियर होंगे सभी को. एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो इन द नेक्स्ट क्लास एंड विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. आई विल ट्राई कि नेक्स्ट क्लास में फिनिश हो जाए. देन आई विल डिस्कस द क्वेश्चंस जो